Hello children, welcome to your English video class. Children, if you are watching the video, you must be knowing that we are doing Unit 14 of your Superb English Grammar book. Children, this unit is related to past tense of grammar section, and we have learned in this unit how to convert present form of verb into past form, and also I have given you some present form of verb and their past forms. Children, in my past video we have completed exercise 1 of this unit. इस यूनिट का हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया है ना। और आज का जो हमारा जो वीडियो है उसमें हम इसकी बाकी की जो एक्सरसाइज है उसमें से मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने इस जो यूनिट है इसके हमने कुछ सेंटेंसेस भी किए हैं, कुछ प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंसेस थे, उसका हमने पास्ट फॉर्म बनाया है। सेंटेंसेस आर गिवन इन प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुछ प्रेजेंट फॉर्म के वर्ब्स हैं उनके पास्ट फॉर्म भी हैं। दैट आई हैव टोल्ड यू टू लर्न। मैंने आपको बताया था कि उसे आपको याद भी करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अब है बाकी के एक्सरसाइजेस पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Children, exercise is given on page number 59 of your grammar book, page number 59, unit 14, page number 59. The exercise is choose the correct word from the box and complete the story. Now what you have to do, a box is given, cloud is there, and some words are written in that cloud. You have to choose the correct word from that box, from that cloud, and you have to complete the story. A story is given that you have to complete, okay, by choosing the correct word. Got it? You have to choose the correct word. So let's see it. Let me write the words first. जो words दिए हुए हैं that I will write. Children, all the words which are given in that cloud, given in that box, are in पास्ट फॉर्म। जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उस बॉक्स में, वो क्लाउड में, वो सब पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है स्टार्टेड, STARTED। चिल्ड्रन, स्टार्टेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टार्ट। जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट का पास्ट फॉर्म है स्टार्टेड। ओके, next word is brought, BROUGHT. Children, brought is the past form of bring. Bring का past form होता है brought. Past form of bring is brought. Then the word is lived, LIVED. Lived is the past form of live. प्रेजेंट फॉर्म लिव होता है और पास्ट फॉर्म लिव्ड होता है। देन द वर्ड इज डिड। डिड किसका पास्ट फॉर्म है? डू। डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। देन द वर्ड इज फेल। फेल इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फॉल। फॉल का पास्ट फॉर्म है फेल। Then the word is was. Was किसका पास्ट फॉर्म है? is. is का पास्ट होता है was. Then we have the verb became. Became is the past tense of become. become present form है और उसका past form है became. Then we have verb had. had किसका पास्ट फॉर्म है? has का, HS has का पास्ट फॉर्म है had. ठीक है, देन द वर्ड इज कट। चिल्ड्रन, कट का प्रेजेंट फॉर्म भी कट होता है और पास्ट फॉर्म भी कट होता है। ओके, कट जो है प्रेजेंट फॉर्म भी है और
पास्ट फॉर्म भी है, प्रेजेंट में भी उसको कट बोलते हैं और पास्ट में भी उसको कट ही बोलते हैं. देन वी हैव सेड, SAID. सेड किसका पास्ट फॉर्म है? से. SAY से का पास्ट इज सेड. एंड देन वी हैव वर्ड gave. Gave is the past form of give. Present form है give और उसका past gave. Okay? तो ये words जो है वो कुछ ऐसे cloud में पर लिखे हुए हैं. Okay? As you can see in your book, written in the cloud. Okay? Now a story is given and you have to that story has blanks in between and you have to complete that story by picking up words from this cloud. You have to pick word from this cloud and you have to complete the story. So let's write the story first. Once a wood cutter. Children, wood cutter किसको बोलते हैं? जो लकड़ी काटता है उसको हम वुड कटर बोलते हैं. हिंदी में से हम लकड़हारा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? वुड कटर. तो वंस अ वुड कटर डैश इन अ विलेज. वंस अ वुड कटर डैश इन अ विलेज. इसमें क्या आएगा? इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? Once a woodcutter started in a village, brought in a village, lived in a village. Yes, once a woodcutter lived in a village. एक गांव में एक लकड़हारा रहता था. ये स्टोरी बता रहे. Lived, LIVED. Once a woodcutter lived in a village. Okay. Once a woodcutter lived in a village. He blank wood near a river. Near a river. He blank wood near a river. Wood को क्या करते हैं? Woodcutter क्या करेगा? wood को cut. Yes. He cut wood near a river. He cut wood near a river. One day, his eggs dash into the river. This is blank into the river. Now what happened? One day, his eggs, जिससे लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी, it dash और blank into the river. वो जो eggs थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो क्या हो गई river में? It fell. जो हम यूज कर रहे हैं, let's cut that. Fell. Okay? One day, his eggs fell into the river. उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई. फिर क्या हुआ? He blank weeping. Weeping मतलब रोना, दुख से, तकलीफ से रोना, उसको कहते हैं weeping. दुखी होके जब हम रोते हैं तो उसे कहते हैं वीपिंग. तो अब क्योंकि उसका एग्स गिर गया था रिवर में तो ही ब्लैंक वीपिंग मतलब ही स्टार्टेड वीपिंग. उसने रोना शुरू कर दिया. ठीक है. स्टार्टेड. ही स्टार्टेड वीपिंग. ही स्टार्टेड वीपिंग. देन द गॉड of the river blank pity on him. अब क्या हुआ? जब उसने रोना शुरू कर दिया, he started weeping.
द गॉड ऑफ द रिवर ब्लैंक पिटी ऑन हिम। जो उस रिवर के जो गॉड थे, उस नदी के जो भगवान थे, उनको उस पर क्या हुआ, दया आ गई। द गॉड ऑफ द रिवर, पिटी मतलब दया आना किसी के ऊपर, तो उसको रोता हुआ देखकर। तो द गॉड ऑफ द रिवर हैड पिटी ऑन हिम। ठीक है, द गॉड ऑफ द रिवर हैड पिटी ऑन हिम। सो व्हाट ही डिड, he dashed a golden axe for woodcutter. He blanked a golden axe for woodcutter. तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या लेकर आए, He blanked a golden axe for woodcutter. गॉड ने क्या किया, He brought a golden axe for the woodcutter. Brought. He brought a golden axe for the woodcutter. इतना हमने किया. Let's read this. Once a woodcutter lived in a village. He cut wood near a river. One day, his axe fell into the river. He started weeping. The god of the river had pity on him. He brought a golden axe for woodcutter. चिल्ड्रन, अभी मेरे नीचे यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं इसको रब करूंगी, फिर मैं आगे का स्टोरी लिखूंगी. ठीक है, आई विल राइट आफ्टर रबिंग दिस. आई होप यू हैव सीन दिस. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. But the woodcutter dash not take it. हमने कहा था, किया था कि गॉड है वो उसके लिए एक गोल्डन एक्स लाके उसको देते हैं, एक गोल्डन एक्स देते हैं, सोने का कुल्हाड़ी देते हैं. तो वुडकटर क्या करता है, वो ले लेता है? नहीं. द वुडकटर डिड नॉट टेक इट, वो उसको नहीं लेता है. द वुडकटर डिड नॉट The woodcutter did not take it. woodcutter उसको नहीं लेता है. और क्या बोलता है? He dash that his axe blank made of iron. He dashed that his axe dash made of iron. अब जो वुड कटर है वो लेता नहीं है. The woodcutter did not take it. He dashed that. अब वो बता रहा है. He said that his axe was made of iron. उसकी वो बताता है, वो बोलता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो लोहे की थी. Okay?
he said that his eggs was made of iron. God blank happy with his honesty the God blank happy with his honesty. अब जब उसकी ऑनेस्टी देखी भगवान ने, गॉड ने देखा कि मैंने उसे गोल्डन एग्स दिया, सोने का एग्स दिया, तो भी उसने नहीं लिया। मतलब वो जो वुड कटर है वो ग्रीडी नहीं है, उसने वो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है। मतलब उसने लालच में आकर वो सोने का जो एग्स था वो नहीं लिया और उसने बहुत ऑनेस्टली कहा कि नहीं, मेरा जो एग्स है वो लोहे का था। तो भगवान क्या हुए? भगवान द गॉड became happy with his honesty. उसकी ईमानदारी देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया? He blank him the golden eggs along with the iron eggs. तो जब भगवान खुश हो गए उसके ऑनेस्टी को देखकर, तो उन्होंने क्या किया? ये तो हम कर चुके हैं सैड में। He gave him the golden eggs along with the iron eggs. जब उसकी ईमानदारी देखी भगवान ने, तो उन्होंने उसे गोल्डन एग्स भी दे दिया और उसका जो लोहे का, आयरन का जो एग्स था वो भी दे दिया। इसको आयरन भी बोलते हैं और आयन भी बोलते हैं, दो तरीके से, आयरन या आयन, ठीक है, लोहा, जिसको हम हिंदी में लोहा बोलते हैं, इंग्लिश में आयरन या आयन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। लुक इनटू योर बुक, ओके। Once a woodcutter lived in a village. He cut wood near a river. One day his axe fell into the river. He started weeping. The god of the river had pity on him. He brought a golden axe for the woodcutter, but the woodcutter did not take it. He said that his axe was made of iron. God became happy with his honesty. He gave him the golden eggs along with the iron eggs. तो ये हमारा हो गया जो स्टोरी कंप्लीट करने वाला था, दैट वी हैव कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ पर लिखना है। वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। यू विल ऑल्सो कंप्लीट दिस इन योर बुक। आप इसे अपने बुक में कंप्लीट करेंगे, ओके। Now we'll do the next exercise. Exercise 3 हम करेंगे। Children, third one is circle the correct past form of the word.
past form of the verbs. Circle the correct form of the past form of the verbs. Okay. Here what you have to do, प्रेजेंट फॉर्म का एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म में, और आपको क्या करना है, उसके पास्ट फॉर्म में सर्कल लगाना है. ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट उसका पास्ट टेंस है, उस वर्ब का जो करेक्ट पास्ट फॉर्म है, उसको आपको एनसर्कल करना है. गॉट इट? एक वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और उसके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं. उन ऑप्शंस में से जो सही है, उस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो सही पास्ट फॉर्म है, उसको आपको सर्कल करना है, उसको आपको गोला लगाना है. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. फर्स्ट वर्ड है हमारा कैच. फर्स्ट वर्ड है हमारा कैच, और हमारे पास ऑप्शन है कैच्ड, caught और कैचड. ओके, हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है कैच. इसके 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं. जो सही, जो करेक्ट पास्ट फॉर्म है कैच का जो सही पास्ट फॉर्म है, उसको आपको सर्कल लगाना है. सो चिल्ड्रन, कैच का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कैच का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कॉट. कैच का पास्ट फॉर्म होता है कॉट. सही पास्ट फॉर्म है इसका कॉट. कैच, कॉट. नंबर 2, क्राई. जो प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है वो है क्राई, और इसका हमें पास्ट फॉर्म क्या क्या है? ऑप्शन हमारे पास क्राई का सिर्फ क्राई, या CRIED क्राइड, या फिर CRYED क्राई. क्राई, क्राइड, क्राइड. अब देखिए, ये क्राइड है, ये क्राइड है, और ये क्राई का क्राई ही है. तो पास्ट फॉर्म क्या होगा क्राई का? चिल्ड्रन, द पास्ट फॉर्म ऑफ क्राई इज क्राइड. CRIED. जो उसका सही पास्ट फॉर्म है वो है CRIED, क्राइड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डू. अब डू प्रेजेंट फॉर्म है. अब इसका पास्ट फॉर्म का ऑप्शन हमारे पास है डिड, डज एंड डन, और इसका सही पास्ट फॉर्म क्या है डू का? डू का करेक्ट पास्ट फॉर्म है डिड. डू, डिड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीव. लीव, और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? लेफ्ट, लीव्ड एंड लेफ्टन. Children, now which is the correct past form of leave? Leave का past tense क्या होता है? Leave का past tense होता है left. Leave, left. Okay? तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है. Catch, caught, cry, cried, do, did, leave, left. Now fifth one. Write. WRITE. राइट. राइट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है राइटेड, ऑप्शन है राइटेड, रिटन, या रोट. राइट का राइटेड, रिटन या रोट. What is the correct form of write? इसमें से कौन सा वाला होगा? Which one will be there? It is wrote. Write का past form होता है wrote. Write का past form
wrote. Okay. Now let's write some other words. Number 6. C, S-E-E-C. ऑप्शंस हैं saw, seen, seed. C का पास्ट टेंस क्या होता है? saw, seen या seed. Children, the past tense of C is saw. Past tense of C is saw. Next, number 7. Get. और है ऑप्शन है हमारे पास getted, got and get. Get का पास्ट टेंस क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है getted, got और get. And the correct option is got. Get का पास्ट टेंस होता है got. Then number 8. Number 8 is take. Take and options है हमारे पास took, taken and taked. Took, taken or taked. And the correct past tense of take is took. Correct past tense of take is took. Got it? So this also we have completed. We have completed question number 3. Okay. Now children, एक आपकी एक्टिविटी है बुक में, दैट इज फन टाइम. फन टाइम. फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ सम मोर वर्ब्स फ्रॉम द ग्रिड एंड राइट देम विद द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो एक ग्रिड दिया हुआ है उसमें कुछ पजल्स के फॉर्म में पास्ट फॉर्म्स दिया हुआ है. किसका पास्ट फॉर्म दिया हुआ है? ऑफ सम वर्ड्स विच आर रिटन बिलो. नीचे जो है आपके बुक के नीचे यू कैन सी हियर आर द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स रिटन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द पास्ट फॉर्म फ्रॉम दिस ग्रिड एंड यू हैव टू राइट इट हियर. ओके. यू हैव टू फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द बिलो गिवन वर्ब्स. ओके. पास्ट फॉर्म ऑफ बिलो गिवन वर्ब्स यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रिड. जो नीचे है वो प्रेजेंट फॉर्म दिया हुआ है, रूट फॉर्म दिया हुआ है, और उन रूट फॉर्म का आपको पास्ट फॉर्म इस ग्रिड में से ढूंढना है. ठीक है. सो लेट्स डू दैट. बट पूरा ग्रिड बनाने के लिए आई हैव टू यूज द बोर्ड U, S, E, D, T, F, F and G. Then there is A, B, C, W, O, E, O, H. Then we have I, R, L, E, U, C, U and T. Then we have J, K, J, E, A, N, C, M, N, N, C, M, N, N. Then we have K, S, U, T, K, S, U, T, H, B, D, O, H, B, D, O. Then we have one more, that is D, P, G, L, D, P, G, L, E, R, Q, A, E, R, Q, A. Then X, E, H, W, X, E, H, W, D, O, P, S,
TCEY, TCEY, SKRK, SKRK, OTDI, OTDI, DETE, LEAT, LEATRIED, and then last column is D, D, Z, P, D, E, C, U. Children, I have roughly made this grid for you. ये मैंने roughly बना दिया है, ठीक है. आपके बुक में प्रॉपर बना हुआ है. Just go through that grid. I have made this to explain you. Okay. Now let's see. पहला हमारा वर्ड है use. हमारा पहला वर्ब है use. तो use का past tense क्या होता है? use का past tense होता है used. तो हमें इस ग्रिड में से यूज्ड वर्ड ढूंढना है. ओके, हमें क्या ढूंढना है? USED. ठीक है, तो आई हैव टू यूज chalk of different color. चलो, दिस इज USED, यूज्ड. यूज का पास्ट टेंस हो गया यूज्ड. ठीक है, देन हमारा वर्ड है आस्क. तो आस्क का पास्ट टेंस क्या होता है? आस्क का पास्ट टेंस होता है आस्क्ड. ठीक है, आस्क का पास्ट टेंस होगा आस्क्ड. ओके, आस्क का होगा आस्क्ड. तो है इट इज बिलो. ASKED, दिस इज आस्क. Ask, asked. Next word is try. तो try का होगा tried. So then it is here. TRIED. Okay, try. Then the word is find. Find का है found. Past tense of find is found. Past tense of find is. Then the word is break. तो break का है broke. Past tense of break is broke. Then go. Go का है went. WENT, went. Then cut. Children, cut का जो past tense है वो कट ही है. कट का पास्ट टेंस कट ही रहता है. सो लेट्स सी वेयर इट इज. CUT, कट. कट का पास्ट टेंस कट. देन रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड. पास्ट टेंस ऑफ रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्टेड. देन टच. टच का पास्ट टेंस touched. TOUCHED, touched. Past tense of touch is touched. Then past tense of laugh is laughed. LAUGHED. Children, you must know the spelling also. जब तक आपको स्पेलिंग नहीं आएगा, आप past tense अगर आता भी होगा तो you will not be able to find, because you must know the spelling also. Then tell का हो गया told. Tell का past tense will be told. TOLD, told. Okay, and then do. Do का past tense है did.
This we have done on the did. Use, used, ask, asked, try, we did tried, this is tried, then find ka, found, F-O-U-N-D, found, then break ka, broke, B-R-O-K-E, broke, go ka, W-E-N-T, went, cut का कट ही रहेगा, C-U-T, cut, respect का respected, R-E-S-P-E-C-T-E-D, respected, then touch का touched, T-O-U-C-H-E-D, touched, then laugh का laughed रहेगा, L-A-U-G-H-E-D, laughed, tell का told, tell का क्या होगा, told, T-O-L-D, told, and do का हो गया did, D-I-D, did. So we completed this fun time also, and with this we come to the end of the exercise and the unit. आपके unit 14 यहाँ पे complete होती है, ठीक है, हमने इसको पूरा कर लिया. Still if you have any doubt in the exercise, or if you have any doubt related to the topic, that is past tense, you can clear that. Okay, now we will meet in our next video. Thank you.